Welcome all students. Join the class, watch my video and be benefited. All the students of standard 12 of PCB stream, if you are here, you can be benefited by watching the video, and I am trying my best to make the chapter so easy for you that you can understand each and every topic very well. Today we shall discuss the unit of transcription, the topic of transcription. This is very important unit and very important topic. We have to understand transcription. Transcription. This is very important topic of this chapter, molecular basis of inheritance. We are reading about the chapter molecular basis of inheritance. As you know, in molecular basis of inheritance, there are so many topics that you have studied. First of all, what did we study about DNA? We have studied about the chemical formula, chemical structure of DNA. What is DNA made up of? Who proposed? What are the experimental proofs of DNA? That all we have discussed. We have studied about something about RNA world also. We have studied about DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन विच देयर इज ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन देयर इज न्यू स्ट्रैंड. Today is very important topic, that is the transcription. Now the main difference, I actually help you whenever I study the same topic, then we should make it a parallel study. क्या पैरेलल होगा? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या पैरेलल होगा, क्या डिफरेंसेज होगा? तो आज हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ेंगे. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जैसे कि रेप्लिकेशन में भी आप देख रहे थे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट रेप्लिकेशन डीएनए स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स. यू ऑलरेडी नो दैट डीएनए इज ऑलवेज मेड अप ऑफ two strands, one strand which is called 5 prime 3 and another is called 3 prime 5 5 sorry 5 prime 3 and 3 prime 5. Okay. Yes, this is the 5 prime end and this will be 3 prime end. So there are two strands of DNA and replication happens in both the strands. तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा क्या है? व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? आई ऑलवेज वांट दैट कि प्रीवियस लेसन्स को भी थोड़ा आप रिवाइज करते रहें, और जब तक प्रीवियस लेसन्स रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आगे की टॉपिक आपकी समझ में कम आएगी. इसलिए यू ऑलवेज नीड टू रिवाइज द टॉपिक्स, not every time go thoroughly, but always whenever you are going to study a new topic, then you just study the related topic of that chapter, just a revision, just a look, so that you can concentrate upon the new topic. In central dogma, you have studied about in the book DNA to RNA and RNA to protein. डीएनए टू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन हम लोगों ने बुक में ही पढ़ा था. ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इट. एंड अगर हम लोग देखते हैं ऊपर थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. तो अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है. तो प्रोटीन बनने का प्रक्रिया क्या है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा. तो डीएनए से क्या बन रहा है? मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कॉपी होता है. क्या होता है? कॉपीइंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है उसी की कॉपी होगी. How it will happen, that will be called as a transcription. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. Learn it, write it.
जैसे आपको हो सकता है आप इसको याद कर जाइए, because it is so important for you. This definition is very important that you have to study. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. तो डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, और इसी टॉपिक को, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फिर जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तब उसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहेंगे, बट पहले हमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को समझना है। तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड यू मस्ट बी नोइंग इट। हियर ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि बुक में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रल डॉगमा में हम लोगों ने पढ़ लिया है डीएनए transfers, converts into messenger RNA, and messenger RNA forms the protein. Here two types of process is taking place. One will be transcription and another will be translation. Transcription and translation both are very important phenomena, and by which ultimately protein is formed. This protein is so important for, because all the information are carried here. तो डीएनए की जो कॉपी है, जो इंफॉर्मेशन है, उसकी कॉपिंग द इंफॉर्मेशन क्या है ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो एक इंफॉर्मेशन का कॉपी करने का एक सिस्टम है। डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है, तो अभी इंफॉर्मेशन किसको हम कह सकते हैं, तो डीएनए वी ऑल नो दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स very clearly. If it is suppose 5 prime and 3 prime, and second is 3 prime and 5 prime, and here it is written T A C G G। तो आप समझ सकते हो कि जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3, इसी 5 प्राइम 3 में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनेगा तो वो सेम चीज होगा। जैसे कि आपको थायमिन की जगह पे आप केवल यूरेसिल आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये यूनिट जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी हुआ है, ये इंफॉर्मेशन कॉपी हुआ, ये इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियस नाइट्रोजनस बेस जो अटैच होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड पे, वो नाइट्रोजनस बेस को हम लोग इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। दिस सीक्वेंस कांट बी अल्टर्ड, ओनली रिप्लेसमेंट इज बीइंग डन। in place of thymine, what is happening here, uracil is happening, only uracil is happening। you can understand it better कि यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरेसिल, जो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो एडेनिन will combine with thymine and guanine combine with cytosine। और यहाँ आरएनए के केस में क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि एडेनिन विल ऑलवेज कंबाइन विथ यूरेसिल। यहाँ पर हमेशा हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि यूरेसिल से ही थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। थायमिन किससे, थायमिन को रिप्लेस करने वाला कौन है, तो थायमिन को रिप्लेस करने वाला यूरेसिल है इन द केस ऑफ आरएनए। बिकॉज वी आर रीडिंग हियर दैट कि आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, तो everything will be same, only the place of in place of thymine uracil will be taking place। now we come on the book, if we see, because my target is this that एनसीईआरटी बुक में जो आपको बच्चे को क्लास 11 के बच्चे या 12 के बच्चे जब पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत चीज उन्हें समझ में नहीं आती है। फर्स्ट रीडिंग गोज इन वैन, आपको लगता है कि मैंने रीडिंग दे दिया, आपको समझ में नहीं आया, बस you have not to give up, you have to continue your studies। और इसी स्टडी को अगर आप 2 बार दूसरी बार पढ़ेंगे, तो तीसरी बार पढ़ेंगे, तो आपको आधी बातें समझ में आ जाएगी। एंड इफ यू आर फीलिंग एनी कॉम्प्लेक्सिटी, वी आर हियर, वी टीचर्स आर हियर टू मेक इट इजी। तो हमारा एक तो ये है कि टारगेट है कि बायोलॉजी जो है हमारे हमारे सारे बच्चों के लिए, जो भी बच्चे बायो पढ़ना चाहते हैं, पीसीबी स्ट्रीम में रहते हैं, उनकी टारगेट है, उनकी जो एम एंड एम्बिशंस है, वो एम्बिशंस अगर बायो चैप्टर से, बायो के सब्जेक्ट से कंप्लीट हो रही है, देन वी आर हियर टू हेल्प यू with no cost। So the principle of complementarity governs the process of transcription
except the adenosine complements now forms base pair with uracil instead of thymine. Understand it very well कि यहाँ पे बेस पेयर्ड यूरेसिल होता है, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल लग जाता है. तो कॉम्प्लीमेंटरिटी यहाँ भी है, गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. However, unlike in the process of replication, दूसरी बात क्या हमें important जाननी है कि डीएनए के replication, because if we are going for parallel study, then we have to know that if there are two strands of DNA, तो replication क्या होता है ना, replication occurs in both strands. Replication occurs in both strands. This is very important line, very concluding line. concluding है, ये आपको हमेशा जानना है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये दोनों स्टेज में होता है. जबकि अंतर क्या हो जा रहा है कि अंतर क्या हमें जानना है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सिर्फ एक ही यूनिट में होता है. ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन ओनली वन स्ट्रैंड. अब इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है कि क्या रीजन है कि वो ट्रांसक्रिप्शन क्यों एक ही स्ट्रैंड में होता है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन. क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन भी डीएनए के स्ट्रैंड से हो रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन होता है. वी आर गेटिंग टू सेट ऑफ टू डीएनएस. But in transcription what happens, the only one strand will be working, the next strand will not be working, not be used for transcription. So how it will happen? We can see here like this. Just we are going for that, we were reading about transcription. So we have understood the definition of transcription. तो वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, अभी हमने बात बताया कि ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड में होता है. ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स इन वन स्ट्रैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग बातें जो होती है वो मैं बोलती रहती हूँ ताकि आप अगर सुनेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा एंड यू विल हैव नो कंफ्यूजन. Transcription always occurs in only one strand, but for that, if both strands, because the strand like in this strand, if in one strand and the another strand, the first strand is called the template strand. इस strand को हम लोग template strand कहते हैं, जिस strand में हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड. And next one, they would code for RNA molecule with different sequences and they code for proteins. अगर दोनों स्ट्रैंड में होगा तब क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड में होने से प्रोटीन्स जो बनेंगे वो डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे. तो जीन एक्सप्रेशन जो होगा, जीन की जो एक्सप्रेशन होनी चाहिए, that will have some complications and that will have a great impact upon the new offsprings. So there should be transcription should always happen only in one strand. One segment of DNA would be coding for different proteins. If you can see here, and it would generate genetic information transfer machinery, ये सारी disturbance हो जाएगी. So DNA always occurs, replication always occurs in only one strand. दूसरा क्या होगा, अगर डीएनए दोनों रेप्लिकेशन, दोनों ट्रांसक्रिप्शन जो है दोनों स्ट्रैंड में होता है, तो दूसरी गलत बात क्या हो जाएगी, जो आरएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा. इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड, in short we can understand, to avoid the formation of two different proteins and to avoid the formation of double stranded RNA. अगर एकदम शॉर्ट में आंसर हमें लिखना हो, 2 मार्क्स में लिखना हो, why DNA, why transcription occurs only in one strand, केवल वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में क्यों होता है, ओनली इन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो इसके जवाब आपका एकदम सुटेबल जवाब आपको क्या देना है, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ
टू डिफरेंट प्रोटीन्स, आपको डिफरेंट प्रोटीन्स को अवॉइड करना है। प्रोटीन्स जो बनना है वो एक बनना था जो डिजाइनेटेड होता है, एंड डबल स्ट्रैंड, एंड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बिकॉज अगर दोनों स्ट्रैंड में होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने की संभावना होगी, एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में फिर प्रॉब्लम आएगी, जेनेटिक ट्रांसफर गड़बड़ होगा। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, आरएनए विल बी सिंगल स्ट्रैंडेड इज राइट। डीएनए शुड बी डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में बहुत डिफरेंस क्या है? हम लोग जो रेप्लिकेशन पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें दोनों स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स ओनली इन वन स्ट्रैंड। ओके, नाउ वी कम अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज वेलकम if you have any issue in understanding the topic. Okay, transcription. After this we shall again discuss the exemplar questions also. These are very important. Some MCQs, different MCQs, बहुत सारे MCQs होंगे, बहुत सारे questions होंगे based on this topic, because we have known the syllabus also। इस chapter से, इस topic से हमारे पास बहुत ज़्यादा questions आ रहे हैं एग्जाम में। अगर हम बोर्ड की बात की करें, क्लास 12 के बोर्ड की बात करें, तो भी हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव नॉट टू escape this topic, you have to always go very thoroughly, understand the topic very thoroughly। what is the transcription process आपने समझ गया, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? copying the genetic information, copying the genetic information from one strand of DNA into RNA। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? व्हाट इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए? ये पहले तो यूनिट समझ जाए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये सपोज कीजिए आप डीएनए का दो स्ट्रैंड है, इस दो स्ट्रैंड में वन विल बी, ट्रांसक्रिप्शन जो होगी कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड में नहीं होती है, किसी खास एरिया में, खास उसके स्ट्रैंड के खास रीजन में हो रही है। और उस रीजन में भी अगर सपोज कीजिए, मैं यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर मैं जानना चाहूँ कि ये सपोज कर लीजिए कि आप ये कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड हो, यह कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड है। अगर बहुत लंबा डीएनए स्ट्रैंड हो तो भी मैं बता रही हूँ कि इतने लंबे स्ट्रैंड में इतना यूनिट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे, इतने यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नॉट ऑल द कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड विल वर्क एज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड काफी लंबा है, उसके एक पोर्शन में, बीच के पोर्शन में अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बना लिया, फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ही तीन पार्ट होंगे। तो इस पार्ट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कलर से समझेंगे कि अब ये देखो, दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज थ्री पार्ट्स। तो वन इज द स्ट्रक्चरल, you can write here now, structural unit, it will be called as promoter unit, and it will be called as terminator unit। So this transcription unit that we have discussed here, this transcription unit has three parts। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसी को कहते हैं। डीएनए स्ट्रैंड के जिस पोर्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस यूनिट को, उस पोर्शन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के थ्री पार्ट्स होंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है।
अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर हम थोड़ी बुक्स को भी देखते चलते हैं, बुक्स हमेशा बुक्स को इजी करना ये सबसे पहला मेरा पॉलिसी है कि आपको बुक्स पढ़ने की बहुत ही इंटरेस्ट हो जाए। अगर बुक आप पढ़ने लगेंगे तो फिर आपकी हर क्वेश्चंस का सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। देयर इज ए कॉन्वेंशन इन डिफाइनिंग दैट टू सेल्फ स्टडी से बढ़कर कोई स्टडी नहीं होती है। तो सेल्फ स्टडी भी कब करते हैं? जब हम बच्चे टॉपिक को समझेंगे तब उसको सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा आनंद आता है। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी के लिए मैं बुक को ईजी कर रही हूँ, और बुक को ईजी करने के लिए मेरी जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये सब बच्चों के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, अदर फिर कोई एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो तो आप इसके लिए कर सकते हो। सो देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए in the structural gene of a transcription unit since the two strands have opposite polarity। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है 3-5 और एक पढ़ा है 5-3 स्ट्रैंड। तो जब भी हम लाइन बनाते हैं टू स्ट्रैंड्स की, टू स्ट्रैंड्स डीएनए जब भी दिखाते हैं वो टू स्ट्रैंड्स की दिखाते हैं, एक 3'3'5 और एक बनाते हैं 5'3। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ऑलवेज अंडरस्टैंड द टॉपिक, समझिए बात को अच्छी तरह से। इस एरिया में ट्रांसक्रिप्शन होना है, दिस एरिया हैज ट्रांसक्रिप्शन unit, and this transcription unit has three parts. How many parts? Three parts. What are these parts? One is promoter region, structural gene, and this will be terminator region. So this is called promoter, this is called structural, and this is the terminator region. तो ये यूनिट को हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का नाम दे दिया। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट consists of three parts. One is the promoter, another is structural gene, third is the terminator, and only one strand of dna only one strand of dna will be used for the process of transcription. Only one strand of dna will be used for the process of transcription. The two strands have opposite polarity समझिए 3-5 और इधर 5-3, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट पॉलरिटी। और जो इंजाइम्स यूज होंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दे catalyze the polymerization in only one direction, that is 5'3। तो ये जो 3'5 है इस पे स्ट्रैंड बनेंगे, द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलरिटी 3'5 acts as a template and is also referred to as template strand। चूंकि 3'5 है और इसी पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तैयार हो रहे हैं तो इसी की इंफॉर्मेशन कॉपी होगी, इसकी इंफॉर्मेशन 3'5 वाले की, और 5'3 जो होंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएंगे। और द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलरिटी 5'3 जो नीचे में है 5'3 की पोलरिटी है, दे विल बी कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो कोडिंग उसमें except thymine at the place of uracil is displaced during transcription। ये बात कई बार मैंने पढ़ाया है कि यहाँ पर थाइमिन के जगह यूडेसिल होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। This strand which does not code for anything is referred to as coding strand। So all the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand। और अगर इस चीज को आप यहाँ देखिएगा, this is how it is created, it will be very easy for you। हर बच्चे के लिए बहुत आसान होना है। तो एडेनिन के लिए क्या होना चाहिए था? थाइमिन हो गया, थाइमिन के लिए एडेनिन, गुआनिन के लिए साइटोसिन। क्यों? क्योंकि ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड है, ये आप दो स्ट्रैंड देख रहे हो। तो एक पर अगर सपोज करो ए होगा और दूसरे पे टी है, जी है, सी है, तो आप जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? तो थाइमिन होगा। थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होगा, गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होगा, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन होगा। तो ये तो डीएनए की स्ट्रैंड ना है, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, so this is the complementarity that we are reading। but for RNA what will happen? only one strand will be working, और इस पे जो यहाँ पे है एडेनिन, तो ये एडेनिन ही रह जाएगा। but for thymine it will be uracil, it will be uracil, and for guanine again it will be same,
गुआनिन, इट विल बी, क्योंकि कॉपी करना है, इंफॉर्मेशन कॉपी हो रहा है, एक ही स्ट्रैंड के इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है, नीचे के स्ट्रैंड को नहीं करना है। तो ऊपर का जो स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड, ऊपर नहीं इसके अल्टरनेट स्ट्रैंड हम लोग कर रहे हैं, 3 5 प्राइम जो है वो टेम्पलेट 3 5 3 और 3-5 वाली जो स्ट्रैंड है दैट विल बी वर्किंग एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी हो रही है। जहाँ थाइमिन है वहां पे आपको यूरेसिल लगाना है, बाकी सारे सीक्वेंस को सेम एज इट इज उतार देना है। तो अब क्वेश्चन है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए। अगर आपसे एक क्वेश्चन दिया गया, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए, अब इसका जो देखो ये सीक्वेंस बनाना है, अब सीक्वेंस बना सकते हो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे आप बताओ, आप कैसे करोगे? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी जो बनाएंगे हम लोग आरएनए, तो बहुत इजी होंगे ना। ये आप क्या करेंगे, एडेनिन की जगह एडेनिन उतारेंगे, थाइमिन की जगह यूरेसिल लिखेंगे, बाकी जितने हैं सबको आपको एज इट इज उतार देना है। सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल देना है, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसक्रिप्शन होगा। और अगर आप यहाँ देख रहे हो एक स्ट्रैंड दिया हुआ है, दूसरा स्ट्रैंड लिखना है, तो फिर आपको रेप्लिकेशन की प्रोसेस, डीएनए की स्ट्रैंड की प्रोसेस हो रही है, डीएनए स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट क्या है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशिएशन कहाँ से होता है, तो प्रमोटर रीजन से होता है। ट्रांसक्रिप्शन के 3 जो यूनिट हैं डीएनए स्ट्रैंड के, पूरे डीएनए स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, डीएनए स्ट्रैंड के जो जिस पोर्शन पे ट्रांसक्रिप्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। दिस इज गिवन इन दिस बुक इन दिस डायग्राम फिगर 5.9, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। तो अगर हम बुक से भी थोड़ा, बुक के अलावे भी अगर आपको मैं बता दूं तो आप अच्छे से समझ सकते हो। दिस इज कॉल्ड डीएनए स्ट्रैंड 3 5 एंड दिस इज 5 3। इसी बात को हम लोग ऑपोजिट पोलैरिटी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी जो हमने लिखा इसको ऑपोजिट पोलैरिटी कही जाती है। अब हियर वी कैन से 3 5 3-5 इन्वर्टर ऑन कर दो, 3 5 5 3। नाउ वी हैव टू सी लाइक दिस। अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ था जो भी ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड में टोटल डीएनए स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो डीएनए स्ट्रैंड में हम लोग देखेंगे कि जिस यूनिट पे, जिस पोर्शन पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होना है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। Now in transcription unit has 3 parts. Now you have to again understand one more thing, that this transcription unit has 3 parts. Structural, gene, promoter area. Promoter means initiation of transcription occurs with the promoter area. Okay, promoter area से ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, और टर्मिनेटेड है जहाँ से लास्ट हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है आप डीएनए के लिए। आप अगर नोट्स लिखना चाहेंगे खुद से आप लिख सकते हैं। आप इतनी अच्छी तरह से आप इसको समझ जाइए टॉपिक कि आप खुद से आप नोट्स खुद तैयार करेंगे। आप 2 बार बुक पढ़ेंगे और उसके बाद नोट्स अपने लैंग्वेज में तैयार कर लेंगे। कैसे, हाउ कैन यू प्रिपेयर योर नोट्स योर सेल्फ एंड दैट विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट्स। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हाउ कैन यू डू इट, तो आपने ट्रांसक्रिप्शन की डिफिनीशन लिख लेनी है। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपको डाल देना है, जो आपको मैंने बुक में अंडरलाइन भी करा दिया है।
फिर आपको लिखना है व्हाई ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ओनली इन वन स्ट्रैंड, व्हाई ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तीसरी बात आपको क्या लिखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कि डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड में नहीं होती है, पार्टिकुलर रीजन में होती है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। देन यू हैव टू राइट अबाउट टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड लाइक दिस। ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो इंफॉर्मेशन होगा, सपोज टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन ए टी सी जी, जस्ट वी आर सपोजिंग टी ए। नाउ व्हाट विल बी द आरएनए, आरएनए जो बनेगा उसका स्ट्रैंड आप कैसे बनाओगे, तो ये आप बनाएंगे कि एडेनिन की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एडेनिन ही लिखेंगे, और थाइमिन की जगह पे क्या लिख देंगे, यूरेसिल लिखेंगे। फिर अगेन एज इट इज आपको उसको कॉपी कर देनी है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात तैयारी हो रही है। केवल टी के जगह यूरेसिल लिखना है और एडेनिन एज इट इज उतार लेना है। तो दिस विल बी योर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग। और टर्मिनेशन और प्रमोटर का क्या रोल है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या रोल है, तो ये तीन पार्ट जो हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर जीन जो हैं, दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड of the structural gene, and the difference is made with respect to the polarity of coding strand. It is a DNA sequence. प्रमोटर में क्या होता है, a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. तो आपने अभी जब जैसे देखा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके तीन पार्ट्स हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। अब प्रमोटर जीन में, प्रमोटर रीजन में ही आरएनए पॉलीमरेज जो है, सपोज दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंड इट विल बाइंड विथ इट। प्रमोटर में ही ये बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज कॉल्ड, अगर हम इसको आरएनए पॉलीमरेज के रूप में देखें तो दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंड इट विल बी ज्वाइनिंग विद द प्रमोटर रीजन, एंड बिकॉज इट इज द इनिशिएशन साइट, यहाँ पर से इनिशिएट होना है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ ए प्रमोटर in transcription unit that defines the template and coding strands by switching its position with terminator. The definition of coding and template strand could be reversed. Terminator is located towards 3' end of the coding strand and it usually defines the end of process of transcription. So you can see that there are additional regulatory sequences also upstream or downstream to the promoter. Then another topic we are going, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन में क्या रिलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो बना उसमें जीन से क्या रिलेशन है, बिकॉज दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर जीन एक्सप्रेशन। जीन का जब तक एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल नहीं होंगे। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि जो प्रोसेस हो रही है डीएनए टू मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन, तो ये जो है कंप्लीट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी तरह का कहते हैं कि एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ होना है, बिकॉज ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट। अब इस बात को भी आपको हमेशा अपने कहते हैं ना टिप ऑफ द टंग पे रखना है, तो ये बात टिप ऑफ द टंग पे रखना है। व्हाट इज दिस,
What is a gene? A gene is defined as the functional unit of inheritance. What is a gene? A gene is the functional unit. Though there is no ambiguity, कोई confusion नहीं है, the genes are located on DNA. Again एक line बन रहा है कि genes का location कहाँ है, तो genes DNA पे है. So literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for transferred RNA और राइबोसोमल RNA. तो DNA से जब RNA बनता है तो RNA कई प्रकार के हो जाते हैं. Depending upon its structure and its function, RNA can be of structural RNA, transferred RNA, ribosomal RNA, structural RNA. Another will be ribosomal RNA, and another will be transfer RNA. बहुत इजी है. अगर आपको मीडियम की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं तो बाइलिंगुअल हूँ, मैं हिंदी भी इंग्लिश भी बोलती हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में समझने में नहीं आना है. डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ट्रांसफर और रिबोसोमल आरएनए. टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए. ऑल्सो डिफाइन ए जीन. Now we have to know that defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide. A polypeptide समझ रहे हो कि we are going towards the formation of the protein. The structural gene in a transcription unit could be said to as monocistronic, mostly in eukaryotes, and polycistronic, mostly in bacteria and prokaryotes. अब चूंकि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल की पढ़ाई करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है. अब एक बात भी गांठ बांध लेना है, प्रोकैरियोटिक में ही ऐसा, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसा होगा जिसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, we should come on the notes, then we shall write it here. This is the rough notes, not very written clearly. I will try to post all the notes also in next video. लास्ट फाइनल जब वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब मैं समराइज करूंगी, दैट वीडियो आई विल पुट अप ऑल द नोट्स prepared by me. Okay, and it will help those students who can't write on their own. They will get it, they will be benefited. तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में और देखो यूकैरियोट्स में, प्रोसेस समझो. प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है. लेकिन ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होता है. ये प्रोसेस कपल हो गया, दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में. लेकिन यूकैरियोट्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए. But again we are talking that translation doesn't occur in nucleus, it occurs on the cytoplasm. So this is the difference. बहुत important differences है, you have to know. Now you can see that मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक भी स्ट्रक्चरल जीन में चेंज हो जाएगा. तो पॉलीसिस्ट्रोनिक किसको कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहेंगे, जबकि मोनोसिस्ट्रोनिक आपको यूकैरियोट्स में कहेंगे. प्रोकैरियोट्स में आप इसको दूसरे लाइन से, दूसरे अट्रैक्टिव कलर से आपको एक पॉइंट हमने ये बता दिया लोकेशन. दूसरा लोकेशन जो है ये भी बता रहे हैं, it will be polycistronic in prokaryotic cell, okay, or it will be in monocistronic in eukaryotic. And in eukaryotes, the monocistronic structural genes have interrupted
the coding sequence, the genes in eukaryotes are split. Split means क्या होता है? Change, divide हो जाना. The coding sequences are expressed or expressed sequences are defined as exons. आप जो मेंडल्स की पढ़ रहे थे, मेंडल्स की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था और लॉ ऑफ, आपने जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को देखा था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स उसको कहते थे जो एक्सप्रेस हो जाते थे, जो एक्सप्रेस होते हैं कैरेक्टर्स, उसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते थे. तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, जो एक्सप्रेस होंगे, उसको एक्जोन्स कहेंगे. अंतर ये समझ लो, ये एक्जोन्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है. स्प्लिटिंग काउजेज, स्प्लिटिंग से क्या बनता है? एक्जोन्स और इंट्रोन्स बन जाते हैं. तो इंट्रोन्स और एक्जोन्स क्या हैं? तो एक्जोन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, उसी को एक्जोन्स कहते हैं. ठीक है. Exons are said to be those sequences of the genes which appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequences do not appear in the mature or processed RNA. तो split gene arrangement further complicates the definition of a gene in the terms of a DNA segment. We can't call that, we can't call yes, 1 minute. We can't call that the exons and introns, or we can't call the DNA segment, complete DNA segment as a gene. जीन नहीं कहा जा सकता, बिकॉज इन यूकैरियोटिक सेल क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? जिसमें कि जीन के सीक्वेंस को, आपके जीन सीक्वेंस जो हैं, वो जीन सीक्वेंस के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक्जॉन्स और इंट्रॉन्स. एक्जॉन्स एक्सप्रेस्ड इन द मैच्योर आरएनए. एक्जॉन्स जो होते हैं वो मैच्योर आरएनए में एक्सप्रेस हो जाते हैं, मीन्स कि वो अपीयर हो जाते हैं, जबकि introns don't not expressed, not appeared in mature RNA. Understand it? Okay. Again, we have to read the topic types of RNA and the process of transcription. और अभी हम लोगों को आरएनए की टाइप्स. तो इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेज ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन. Sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any. This is not, but this passage is very important. बहुत सारे क्वेश्चंस इससे निकल रहे हैं. एक्जॉन्स, इंट्रॉन्स, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक. अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे, तो हम लोगों ने अभी बताया जब डीएनए से ट्रांसफर होता है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, तो आरएनए कई प्रकार के बन जाते हैं. उनके फंक्शन के आधार पर कई प्रकार के आरएनए तैयार होते हैं. एक होते हैं मैसेंजर आरएनए. इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, जिसका हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा में डिस्कशन किया था कि दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसफर आरएनए, another is ribosomal RNA. So all these three RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. The messenger RNA provides the template. तो प्रोटीन को हेल्प, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं ये तीनों RNA जो हैं, mRNA और क्या है tRNA और कौन है रिबोसोमल RNA. ये तीनों का काम फंक्शन क्या है? अल्टरनेटिवली, कंप्लीटली, कंबाइंडली formation of protein. Function of all these three RNA is formation of protein. Understand it? All three RNAs are needed.
The messenger RNA provides the template, transfer RNA brings amino acids and reads the genetic code, and ribosomal RNA plays structural and catalytic role during translation. ये कितना important आपके लिए ये टॉपिक है, इसको आप खूब अच्छे से पढ़ लो और इस बात को समझ जाओ कि there are three types of RNAs: messenger RNA, transferred RNA, ribosomal RNA, and these three RNAs, all the three RNA helps in the formation of protein. All three RNAs are needed to synthesize a protein. The messenger RNA provides the template, transferred RNA brings, अब सबका वर्क देख लो, मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, तो ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, तो ये एमिनो एसिड्स को ला रहा है। यहाँ पे ये एमिनो एसिड्स आएगा तभी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए एमिनो एसिड आ रहा है। और ये ट्रांसफर्ड आरएनए जेनेटिक कोड को भी रीड कर रहा था। रिबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, कैटालाइटिक रोल करते हैं। किस प्रोसेस में, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, बिकॉज अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन होती है। फाइनल तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस बाय टू प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। So there is single DNA dependent RNA polymerase, एक enzyme है which catalyzes the transcription of all types of RNA in bacteria. RNA polymerase binds to promoter. अब यहाँ पर आप देखो प्रमोटर से जो बाइंड हो रहा है एक सिग्मा फैक्टर है। अभी हमने बताया कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज थ्री पार्ट्स: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो प्रमोटर रीजन में ही जो है ये आरएनए पॉलीमरेज में एक सिग्मा फैक्टर अटैच होगा। Sigma factor, what is the role of sigma factor? Let us understand in this topic. This is the strand of DNA having two parts, you can see, having two strands, 3 5 and 5 3, and the one last portion, we are indicating it with a promoter region, एंड प्रमोटर रीजन पे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज एक इंजाइम है जो इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है और उसमें एक सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाता है। So in bacteria there are three major RNA, we have हम लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया है। RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription। अब समझिए बहुत अच्छे से, RNA polymerase प्रमोटर से बाइंड करता है, प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है और इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, nucleoside triphosphate as a substrate, and then we are calling here, and polymerizes a template dependent fashion following the rule of complementarity and opening of helix and continues the elongation। हेलिक्स कैसे ओपन हो रहा है और किस तरह से वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, हियर वी हैव अंडरस्टूड। आपको मैंने कई बार बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके तीन पार्ट्स अगर हम लोग जान रहे हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन में ही क्या होता है बच्चे, ये आरएनए पॉलीमरेज वर्क करना शुरू करते हैं। किस रीजन में, प्रमोटर रीजन में, इसी को मैं दिखा रही हूँ। और इसमें एक फैक्टर जो है सिग्मा फैक्टर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैटेलाइजेस द रिएक्शंस, पॉलीमरेज जो है कैटेलाइज करता है, इनिशिएशन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ये बाइंड कर जाता है प्रमोटर रीजन से और टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट, ये यूनिट जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जो प्रमोटर रीजन है इसमें आरएनए पॉलीमरेज आ चुका है और इसमें सिग्मा फैक्टर अटैच हो गए हैं और यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टेड है। एंड अनदर फेज इज इलोंगेशन फेज, जिससे कि इलोंगेट किया जा रहा है। और नेक्स्ट विल बी टर्मिनेटर, तो टर्मिनेशन लास्ट में आप देख रहे हो। तो यहाँ पर रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से कब हुआ था, इनिशिएशन के टाइम में। ये जो है सिग्मा फैक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर होता है, इसको रो फैक्टर लिख सकते हैं। इसलिए सिग्मा और रो, ये सिंबल हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। रो सिंबल है ये और यही सिंबल यहाँ दिखाया गया है।
सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, ओके, रो फैक्टर टर्मिनेशन के लिए हो गया और सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए हो गया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको एकदम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और हमें एकदम इसको क्लियर समझना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। किस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए पॉलीमेरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज हेल्प्स, कौन सा इंजाइम हेल्प्स करता है इनिशिएशन में, तो ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज जो हेल्प करते हैं इनिशिएशन में। और ये क्या करते हैं, तो प्रमोटर रीजन से बाइंड कर जाते हैं। प्रमोटर रीजन में सिग्मा फैक्टर यूज होता है। सिग्मा फैक्टर ऑल्सो बाइंड्स विद द आरएनए पॉलीमेरेज and helps in the initiation of transcription. Then elongation happens, and after elongation termination happens. Termination occurs by rho factor, when rho factor combines with the RNA polymerase. Let us understand the book also, and it somehow also facilitates opening of the helix and continues elongation. Short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, जब पॉलीमेरेज जो है टर्मिनेटर रीजन तक पहुंच जाता है तो आरएनए जो बना है वो खत्म हो जाए। सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमेरेज, और वो भी खत्म होने लगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको पॉइंट कौन सा रखे हैं, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है, इट इज समाप्ति की ओर जा रहा है, लास्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, प्रोसेस एंडिंग, द एंड पर एंड पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द क्वेश्चन, how RNA polymerase is able to catalyze all the three steps। इन्होंने RNA polymerase की बात अगर करें तो RNA polymerase तीनों के साथ है, इनिशिएशन में भी है, इलोंगेशन में भी है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों फेज में आरएनए पॉलीमेरेज का रोल क्या है। आरएनए पॉलीमेरेज इज कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। इट एसोसिएट्स इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा, यहाँ देख रहे हो सिग्मा का सिंबल भी दिया हुआ है। टर्मिनेशन फैक्टर रो, ये रो जो है ये टर्मिनेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो आप समझ रहे हैं, रेस्पेक्टिवली एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स आफ्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमेरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। तो वेरी शॉर्ट में अगर हम बोलना चाहेंगे कि यू प्रोकैरियोटिक सेल्स की ट्रांसक्रिप्शन को अगर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो हमें सिंपली लिखना होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स होंगे, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन में RNA polymerase combines with the with the promoter region to initiate the process of transcription, and simultaneously the sigma factor, जिसको हम लोग initiation factor भी कहते हैं, तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। इनिशिएशन फैक्टर में कौन ज्वाइन करता है, तो सिग्मा फैक्टर ज्वाइन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। बट टर्मिनेशन में क्या होता है, रो फैक्टर काम करता है। अंडरस्टैंड इट। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमेरेज, तो कहाँ होता है ये, किस एरिया में हो रहा है, तो ये प्रमोटर रीजन में हो रहा है। और टर्मिनेशन रीजन आप पढ़े ही हैं, वहां पे भी आरएनए पॉलीमेरेज तीनों पॉइंट पे जा रहा है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये जो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर है ये हेल्प करता है इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन में। सो बैक्टीरिया में क्या है, मैसेंजर आरएनए डजंट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। सो ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट समझ लो, देर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया, कई बार हम लोग बैक्टीरिया का डायग्राम बनाते हैं और कई बार तुमको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हम दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये सोचना होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं,
और इसकी डीएनए कैसी होती है, तो सर्कुलर डीएनए होती है। और जो रीजन में होता है न्यूक्लियोइड रीजन होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सेपरेशन नहीं है न्यूक्लियोसोम और साइटोप्लाज्म में, तो इसके जो सब्सटेंसेज हैं इसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोसोल में ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और ट्रांसलेशन यूनिट दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है। मैंने नोट्स में भी लिखा है इस बात को कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो जाते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है। Many times translation can begin much before mRNA is fully transcribed. Transcription and translation can be coupled in the bacteria. क्यों couple हो जाता है? Because they are occurring in the same location. They are occurring on the cytosol. Okay, but in eukaryotes क्या होता है? What happens in eukaryotes? यूकैरियोट्स में टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है? देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे तीन तीन आरएनए पॉलीमरेज हैं। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब यहाँ पर आरएनए को तीन, पॉलीमरेज को तीन इंडिकेट किया गया है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। और हम लोग ने पढ़ा है कि राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर्ड आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तीनों आरएनए हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। नाउ इफ वी सी here that RNA polymerase 1 transcribes the ribosomal RNA, and whereas the RNA polymerase 3 is responsible for transcription of transferred RNA and small nuclear RNAs, like here we are reading snRNAs. The RNA polymerase 2 transcribes precursor of messenger RNA, heterogeneous nuclear RNA. I think we shall discuss it in the next class again. Process of transcription in eukaryotes. I am also tired. So, thanks for watching, and if you like it, must share and subscribe so that all should be benefited. If you are benefited, have positive vibes and have a good day. Okay, like, share and subscribe. Okay, we shall read the eukaryotic transcription in the next video, and I will wait for your comments. Okay, thank you. Thank you once again. Uh, it's I feel very happy when I have some teaching lesson, and I am preparing video for some students which will be beneficial for all students. Okay.